Shall we start? Okay. So, we were learning about the constitution. We have already learned about the preamble. We know what is preamble, the first page of the constitution, which includes all the points or all the articles of the constitution in a small introduction form. और उसी इंट्रोडक्शन के जो की वर्ड्स है that we are going to learn in detail in this chapter itself. Then we were learning that how the constitution was framed, कि constitution कैसे बना था. तो 1946 में the work was already started. In 47 we got the freedom. 49 the constitution was ready. In 1950 finally the constitution was implemented, or you can say incorporated. Okay, now who were the people who worked for this constitution that we are going to learn today? A team of people. Yes, Vaidya Radhika is having a doubt. Bolo Radhika. Right. So as we talked yesterday also, that it was a team of people, team of leaders, team of experts who sat together, who made meetings together and formed our constitution. This team of leaders is known as constituent assembly. ठीक है, ये हमें जो पिक्चर्स दिख रहे हैं वो, और ये तो थे ही, प्लस इन एडिशन देयर वर अदर लीडर्स जिन्होंने साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया. All these people together are known as constituent assembly. Okay, all of you. And who was the leader of this constituent assembly? Yes, Dr. Ambedkar was the leader of this constituent assembly. Okay, now let's see who are the other leaders. We will start from here. यहाँ से. Can you see the line? Okay, let's start from there. The Constituent Assembly was formed of prominent and distinguished scholars and leaders. Prominent meaning important, distinguished matlab expert, which we have already written. Their political vision and foresight was incorporated in the Constitution. Incorporated meaning included. Okay, leaders like Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Patel, Maulana Abul Kalam Azad, Shyam Prasad Mukherjee, Sardar Baldev Singh, etc. provided their guidance. These were the important leaders. Frank Anthony represented the Anglo-Indian community. Now, Anglo-Indian community. Anglo means in English. Indian, matlab Indian. Right? So, now Britishers have already gone. Okay? But there are some of the British families who settled down in India permanently. वो लोग इंडिया में ही रह गए. Why? Because they were impressed, they were attracted with the Indian culture and all these things. So they decided that we will live in India itself. तो उसमें से थोड़े बहुत ब्रिटिशर्स ऐसे थे जिसको पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी पार्ट बनना था. ठीक है, अब आपको तो पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या क्या किया था, है ना. अब ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद डू यू थिंक कि हम लोग वापस पॉलिटिक्स में ब्रिटिशर्स को आने देंगे? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? ऑब्वियसली नो. लेकिन फिर भी एज पर द सजेशन ऑफ द लीडर्स, लीडर्स ने क्या सजेस्ट किया कि ब्रिटिशर्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स और इन द पार्लियामेंट. लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, राइट, ये जो सब पूरे लीडर्स है, उनमें एक इंसान ऐसा होगा जो कि इंग्लिश पीपल को, ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट करेगा. जैसे मॉनिटर है तो वो मॉनिटर रिप्रेजेंट्स द क्लास, है ना, मॉनिटर क्लास को रिप्रेजेंट करता है. तो ऐसे फ्रैंक एंथोनी, जो कि बाकी के ब्रिटिशर्स की तरह नहीं था, ही वॉज इन द फेवर ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट. ठीक है, तो फ्रैंक एंथोनी वॉज सिलेक्टेड एज अ मेंबर who will work on behalf of all the Britishers.
और उसको क्या बोला गया था, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब एंग्लो इंडियन मतलब एंग्लो मीनिंग इंग्लिश, इंडियन मीन्स वी आर लिविंग इन इंडिया। अभी क्या हुआ था, व्हेन ब्रिटिशर्स वर देयर इन इंडिया, तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के साथ मैरिजेस किए थे। ओके, दे मैरिड द इंडियन पीपल। तो आइदर फिर उनके बच्चे हुए, राइट। तो आइदर द मदर वाज ब्रिटिश एंड फादर वाज इंडियन, और एल्स द मदर वाज इंडियन एंड फादर वाज ब्रिटिश। नाउ देयर चिल्ड्रन, उनके जो बच्चे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, वेदर ही इज एन इंडियन और एन ब्रिटिश। तो दिस कम्युनिटी वाज नोन एज एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, क्योंकि मदर या फादर दोनों में से एक तो इंडियन था, है ना। जैसे हमारे राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी के फादर राजीव गांधी वाज एन इंडियन, सोनिया गांधी इज एन इटालियन। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। यस, और ऐसे ब्रिटिशर्स, yes, so ऐसे Britishers who lived in India permanently, who wanted to participate in India's management, in India's administration, उनकी भी एक community थी जिसको बोलते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। And the representative, the monitor was Frank Anthony. And H.B. Modi represented the Parsi community. I think you know Parsi is a religion. तो पारसी कम्युनिटी में से भी एक रिप्रेजेंटेटिव आए जिसका नाम था H.P. मोदी। The committee had various constitution scholars, scholars मतलब experts, like Alladi Krishna Swami Iyer, Dr. B.R. Ambedkar, and K.M. Munshi, etc. Plus, there were female members like Sarojini Naidu and Vijaya Lakshmi Pandit. There were female members also. Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the Constituent Assembly. I think ये तो हमें पता ही है. He was the president. He was the leader. There were a number of subcommittees to take care of various aspects of the Constitution. Now, subcommittees, आपको पता है ना, subcommittees मतलब उनके अंडर काम करने वाला। मतलब suppose if there is a committee of 10 members, A, B, C, D, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि मिस्टर ए को एक डिपार्टमेंट दे दिया कि आप जो है वो फाइनेंस के बारे में लॉज बनाओगे। अभी आपको पता है कि लॉज बन रहे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या होते हैं, लॉज होते हैं, राइट। तो ए को बोला कि आप फाइनेंस के बारे में लॉज बनाओगे। फिर बी को क्या बोला कि आप एजुकेशन के रिलेटेड लॉज बनाओगे, मिस्टर डी को। फिर मिस्टर सी को क्या बोला कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड लॉज बनाओगे। फिर डी आए तो डी को क्या बोला कि आप वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड रूल्स बनाएंगे, ठीक है। तो लाइक दिस वेरियस सब कमिटीज वर मेड, और हर एक कमेटी का एक एक हेड और उनके अंदर दो तीन अदर मेंबर्स। फिर मिस्टर ए ने अपना पूरा फाइनेंस का रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया, बी ने एजुकेशन का बना दिया, सी ने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बना दिया। फिर एक कंबाइंड मीटिंग होती है। इन कंबाइंड मीटिंग ऑल दिस ABCDEFGH दे विल प्रेजेंट द रूल्स। अगर सबको ठीक लगा तो ओके, थोड़े से चेंजेस करने हैं तो टुगेदर दे मेड द चेंजेस, एंड दिस इज हाउ फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनलाइज्ड एट द एंड। I hope you can understand the subcommittees, all of you. Okay. So there were a number of subcommittees to take care of various aspects of the Constitution. The drafting committee, draft मतलब rough copy, जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था. Okay. The drafting committee, which was headed by Dr. B.R. Ambedkar, gave the Constitution its final shape. Total 166 meetings were held. Just imagine, 1946 से काम चालू हुआ था और 1949 में काम खत्म हुआ। इन दिस पीरियड टोटल 166 मीटिंग्स टुक प्लेस। इतनी बार वो लोग मिले थे। टोटल 166 मीटिंग्स वर हेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन अ टाइम पीरियड ऑफ 2 years, 11 months and 18 days। ये जो एग्जैक्टली आप काउंट करो तो इट इज 2 years, 11 months and 18 days।
मतलब ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए, है ना। 2 इयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज, मतलब अगर इसमें और 12 डेज ऐड कर दो तो 3 इयर्स हो जाएंगे। On 26th November 1949, the committee passed the constitution which was enforced on 26 January 1950. अब ये नवंबर और जनवरी वाली तो स्टोरी आपको पता है ना, 49 में रेडी हो गया था लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी में। ओके, सो राइट द न्यू मीनिंग एनफोर्स्ड, यहाँ पर एनफोर्स मीनिंग फॉलोड और इम्प्लीमेंटेड। This will be your next meaning. Follow, enforced meaning followed or implemented. And below are the pictures which we have already seen before also. Any doubts in this page? Anybody? Any doubts? Okay. I'm turning the page. Meaning लिख लिया ना सबने? ओके, वो मैंने वो सेटिंग में किया है बेटा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो यू कैन स्पीक आउट। इफ योर वॉइस डज नॉट रीच मी यू कैन रेज योर हैंड so that I will ask you personally. Okay? Right. Here comes the next page. Why do we need a constitution? अब constitution की जरूरत क्या है? 3 months तक काम किया, 166 मीटिंग्स किए, इतने सारे लोग बैठे, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? तो उसका आंसर इसी पैराग्राफ में है। Why do we need a constitution? What if there is no constitution? नो कंट्री कैन फंक्शन विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन। रूल्स के बिना एक स्कूल भी आगे नहीं बढ़ सकती, तो ये तो पूरा कंट्री है, राइट। अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स मेनी ऑब्जेक्टिव्स। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच फाइनली व्यूज द इथोस एंड आइडियल्स ऑफ आवर कंट्री। इथोस मीनिंग वैल्यूज, हमारी कंट्री जो वैल्यूज को फॉलो करती है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है। ओके, सो राइट योर नेक्स्ट मीनिंग ethos, and the meaning will be values. So it finally weaves, weave मतलब बनाना, हम लोग क्लॉथ को वीव करते हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा सिलाई काम नहीं है, बट व्यूज मतलब इट मेक्स द values and ideals of our country. It tells about the kind of government our country would have, how to run the administration of our country. In a democratic form of government, we elect our leaders. वो तो आपको पता ही है, इलेक्शंस होते हैं, yes or no? Yes, so that they can run the administration on our behalf. हमारे behalf में काम करते हैं, हम उनको वोट दे के पार्लियामेंट में भेजते हैं और फिर वो हमारे behalf में काम करते हैं. However, there are provisions in the constitution to check the misuse of power by the leaders. Now, do you know after how many years we have elections? After how many years do the elections take place? 5 years. Yes, 5 years. Now, यस, ना सपोज टेक एन एग्जाम्पल कि आप लोगों ने सबने वोटिंग किया और मुझे इलेक्ट कर दिया, ठीक है, मैंने गवर्नमेंट बना ली। अब नेक्स्ट इलेक्शन होगा 5 इयर्स के बाद, तो इट माइट हैपन कि मुझे तो पता है कि चलो वो मुझे इतने सारे वोट्स मिल गए, मुझे मेजोरिटी मिल गई, आई फॉर्म द गवर्नमेंट। अब 5 इयर्स तक मुझे जितनी भी दादागिरी करनी होगी मैं करूंगी। तो ऐसी दादागिरी कोई ना करे कि 5 इयर्स तक अगर आ गए तो आ गए, फिर आपको जो मर्जी चाहे करो, ऐसा ना हो। फॉर दैट ऑल्सो देर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजन मतलब देर आर पॉइंट्स दैट यू कैन नॉट मिस यूज द पावर। आपने मुझे इलेक्ट कर दिया, मैं इलेक्ट हो गई, मैंने गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया, और जैसे मैंने गवर्नमेंट फॉर्म किया, आई स्टार्टेड डिक्टेटरशिप, आई स्टार्टेड दादागिरी। तो उसके लिए जैसे आप वोट करके इलेक्ट कर सकते हो, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स भी है पीपल के पास कि आप वोट करके किसी को रिमूव भी कर सकते हो। इफ यू थिंक दैट आई एम मिसयूजिंग माय पावर्स, तो बिफोर 5 इयर्स इटसेल्फ यू कैन रिमूव मी ऑल्सो बाय नेगेटिव वोटिंग। अभी आप आपको पता चल सकता है कि व्हाट इज नेगेटिव वोटिंग।
है ना। किसी को पावर लाने के लिए वोट करते हो तो दैट इज इलेक्शन, किसी को निकालने के लिए वोट करते हो तो दैट इज नेगेटिव वोटिंग, राइट। तो 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, इफ यू थिंक दैट आई एम नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आई एम मिसयूजिंग माई पावर, देन यू हैव द राइट टू रिमूव द गवर्नमेंट ऑल्सो। एम आई वेरी क्लियर? Okay. Now there is a box given to us, extra information, things to know. The Constitution of India has borrowed some special features of the Constitution of Britain, Ireland, France and the United States of America. ऐसा नहीं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ ये लीडर्स ने बोला वही हुआ है। ये सभी लीडर्स ने बाकी के कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन भी थरोली स्टडी किए थे कि व्हाट आर द अदर कंट्रीज फॉलोइंग, एंड दे स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, और वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी उन्होंने बोरो किए हैं। आई थिंक यू नो व्हाट इज बोरो, टू टेक। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? ओके। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये तो हमारी पहले भी बात हुई थी। इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, okay, and it includes good principles of other countries also. Now you can see there is one picture given to us, voting और polling booth। अभी आप तो वोट करने नहीं जाते हो, लेकिन अगर आप वोटिंग के लिए जाते हो तो द रूम लुक्स लाइक दिस। ठीक है, देखो आप यहाँ पर पहले स्टेज में क्या होगा, हियर योर नेम विल बी रजिस्टर्ड ओवर हियर। हाँ, फिर जैसे आप आगे आओगे तो यहाँ पर आपके नाम के आगे टिक मार्क होगा। जैसे ही टिक मार्क हो जाएगा तो यहाँ पर एक ऑफिसर बैठा है जो आपके फिंगर में वो मार्क करेगा। वो पता है ना, फिंगर में मार्क करते मतलब यू वोटेड, राइट। फिर यहाँ पर जाओगे तो आपको अपना वोटिंग कार्ड आईडी, वोटिंग आईडी कार्ड होता है ना, वो दिखाना होता है। और व्हेन यू क्लियर ऑल दिस स्टेजेस, आप सभी जगह पर ओके हो जाते हो तो फिर आप यहाँ पर जाके अपना वोट दे सकते हो। दैट इज सीक्रेट। इनमें से किसी को पता नहीं चलेगा कि आपका वोट किसको गया है। ओके, ये पूरा देखो आप कवर किया हुआ है ना, इसके अंदर मशीन पड़ा है, वहां पर आप अपना बटन प्रेस करोगे। दिस इज हाउ द वोटिंग प्रोसेस इज डन। डू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। जिसने देखा है वेरी गुड। चलो अब यही चीज हमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। Salient features of our constitution. Salient meaning most important, or you can say special features. Write the next meaning. Salient meaning special. Write the next word. Salient meaning special. अभी देखो ये राधिका का जो क्वेश्चन था कि प्रीएम्बल को समझाओ। अब प्रीएम्बल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे? डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिज्म, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी। ठीक है, अब यही वर्ड्स हमें वन बाय वन पैराग्राफ में समझाएंगे। उसमें से फर्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक, विच वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? ओके, सो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से स्पेशल फीचर्स है, उसमें से फर्स्ट है डेमोक्रेटिक रूल। इंडिया हैज अडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। General elections are held in our country every 5 years, which we already know. Citizens above the age of 18 are eligible to cast their vote. ये भी हमें पता है ना? कोई भी वोटिंग के लिए नहीं जा सकता। If your age is above 18 years, so write the meanings given over here. Eligible meaning capable. You are capable to give the vote only if your age is 18 or above. And cast, C-A-S-T, cast meaning give. Write the next meaning. Cast meaning give. Citizens above the age of 18 are capable to give their vote. We cannot imagine democracy without election. अगर डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी मतलब पीपल्स रूल। पीपल्स का विशेष हमें कैसे पता चलेगा? Only if we do elections.
People all over the country play their role in electing their representatives. Any voter of the country can contest an election. Contest means participate. आप वोट दे तो सकते हो लेकिन आप वोटिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो. Okay, so again write the next meaning. Contest meaning participate. उसके लिए थोड़े कंडीशंस होते हैं. अगर आप वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो. सो एनी वोटर ऑफ द कंट्री कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, कास्ट, क्लास और जेंडर. आप कोई भी रिलीजन से हो, आप कोई भी कास्ट से हो. रिलीजन मतलब हिंदू मुस्लिम जो आपको पता है. कास्ट मतलब ब्राह्मण, लोहाना, पटेल, वानिया. एनी क्लास मतलब रिच, पुअर, मिडिल क्लास, कोई भी. एंड जेंडर मतलब मेल और फीमेल. एम आई वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? Okay, so any voter of the country can contest an election irrespective of his or her religion, caste, class or gender. The elected representatives rule for 5 years. Every citizen enjoys the freedom to follow religion of his or her choice as well as freedom of speech, expression and thoughts. अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो you have got some special rights. Which rights? You have the right to choose your representative. आपको कौन रूल करेगा वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो. सेकेंड, फ्रीडम ऑफ स्पीच. आपको लगे कि गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में बोल भी सकते हो. गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड थॉट. यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स, यू कैन स्पीक आउट योर थॉट्स. अब मीडिया में जाकर आपको पता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत सारे लोग बोलते हैं, न्यूज़पेपर में आता है, टीवी में आता है. Why? Because they are given the freedom of speech. समझ में आ रहा है all of you? हाँ, लेकिन वो अगेन वी आर इन डेमोक्रेसी, राइट. हमें पता है कि कौन मिस यूज कर रहा है और कौन प्रॉपरली हमें अवेकन कर रहा है ना. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स द वर्ड सेक्युलरिज्म. व्हाट इज सेक्युलरिज्म? ये पिक्चर में हमको दिया है. अगर आप ये पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो व्हाट कैन वी सी? दैट हियर वन पर्सन इज अ सिख, वन पर्सन इज क्रिश्चियन, दिस इज मुस्लिम, दिस इज हिंदू. यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर मस्जिद है, यहाँ पर एक चर्च है, पीछे पिक्चर में देख सकते हो, और यहाँ पर गुरुद्वारा है. तो अभी आपको क्या लगता है व्हाट माइट बी सेक्युलरिज्म? यूनिटी इन विच एरिया? यूनिटी टू फॉलो एनी ऑल द रिलीजन. ठीक है. जब भी वर्ड सेक्युलरिज्म आता है इट मीन्स इट इज कनेक्टेड टू रिलीजन. कनेक्टेड टू रिलीजन मतलब क्या? कि इफ यू आर लिविंग इन अ सेक्युलर नेशन, अगर आप कोई भी सेक्युलर कंट्री में रहते हो, इसका मतलब यू कैन फॉलो एनी रिलीजन ऑफ योर चॉइस. यू कैन चेंज योर रिलीजन. अगर मैं हिंदू हूं और मुझे लगता है कि नहीं मुझे क्रिश्चियन बनना है, तो आई कैन चेंज माई रिलीजन. आई कैन प्रोपोगेट माई रिलीजन. प्रोपोगेट मीन टू स्प्रेड. मैं अपने रिलीजन की अच्छी अच्छी बातें जो है वो लोगों को स्प्रेड कर सकती हूँ. जैसे आपको पता है ना, व्हाट्सएप में बहुत सारे वीडियोस आते हैं जिसमें अपने अपने रिलीजन के बारे में बताते हैं. फिर अगर आप टीवी में वो संस्कार चैनल या आस्था चैनल करोगे तो आप देख सकते हो कि वो मुरारी बापू है, वो क्या करते हैं? अपने रिलीजन को स्प्रेड करते हैं, है ना. तो ऐसे बहुत सारे लोग. हाँ, राम कथा. अगर आपने वो मूवी देखी, अगर पीके देखा है या ओ माई गॉड देखा है, तो उसमें दिखा रहे कि सब लोग अपने रिलीजन को प्रोपगेट कर रहे, स्प्रेड कर रहे, और कोई इसको मना नहीं कर सकता. वाई? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर नेशन. So when in any country people are allowed to follow any religion without any restriction, you can follow, change or propagate your religion without any restriction, then such type of country is known as a secular country. Am I very clear with the word secularism? Okay, जैसे देखो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री. ठीक है. अमेरिका है
तो अमेरिका इज अ क्रिश्चियन कंट्री, इंडिया इज नॉट अ हिंदू कंट्री, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, मतलब यहाँ पर सब लोग रहते हैं। और आपको पता होगा कि इंडिया में दिवाली की भी हॉलीडे होती है, ईद की भी हॉलीडे होती है, क्रिसमस की भी होती है, सबकी होती है। वाई? बिकॉज वी फॉलो सेक्युलरिज्म। समझ में आ रही है बात ऑल ऑफ यू? ओके, लेट्स कंटिन्यू। A secular nation means that the government does not conform to the norms of any particular religion. Conform means favor. Write the next word, conform, meaning favor. And norms meaning rules. Write the next word, norms meaning rules. किसी भी रिलीजन के रूल को हम लोग फेवर नहीं करेंगे। फेवर तो पता है ना आपको, ऑल ऑफ यू, यू नो व्हाट इज फेवर? सपोर्ट करना। ओके, so secular nation means that the government does not favor to the rules of any particular religion in its system of governance. Citizens are not discriminated on the basis of their faith, sect or religion. किसी के बीच में discriminate नहीं करेंगे, differences नहीं करेंगे। Then the next one, discriminated meaning partiality. Discriminated meaning partiality. क्योंकि आप मेरे रिलीजन के हो तो आप अच्छे हो, क्योंकि आप दूसरे रिलीजन से हो तो आप बुरे हो। नो, दिस इज नॉट अलाउड इन इंडिया। Citizens are not discriminated on the basis of their faith, sect or religion. Every citizen enjoys the right to follow and propagate the religion of his or her choice. Propagate again means to spread. Right, the next word, propagate मीनिंग टू स्प्रेड। आप अपनी रिलीजन को स्प्रेड भी कर सकते हो, उसकी एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हो। हैव रिटन द मीनिंग? एनी डाउट buddy? Okay, now next page we will continue tomorrow as we are running short of time. तो एक हमने लर्न किया व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वन इज डेमोक्रेसी, सेकंड इज सेक्युलरिज्म, अभी थर्ड है रिपब्लिक। देखो आप नेक्स्ट पेज में टाइटल देख सकते हो,